tan theta is equal to delta v upon delta t is equal to acceleration here. ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा वी आपके पास क्या है, वो इनिशियल टू फाइनल, यही तो आपके पास डेल्टा वी है, और ये आपके पास है डेल्टा टी, एंड रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इज नथिंग बट tan थीटा, एंड इट्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लोप ऑफ दिस क्वेश्चन. वेरी नाइस. And be careful if you have some other graph. Hello students, welcome to Aspiring SS. Today I will discuss about some specific topic of mechanics, like equation of motion in a straight line. In order to discuss about this mechanics part, I have already discussed about the behavior and their motion of the particle in a straight line, and also I have the proof in my previous lectures. The equation of motion, I have lectures. Equation of motion by calculus method. ठीक है, and by uniform accelerations, and I was discuss about the equation of motion and derive these relations in my previous lectures by the calculus method, where I have details explaining that if you have this positions coordinate, this one, and then velocity v is equal to is what, dx upon dt, and acceleration is equal to d2x upon dt का square. Okay, then today I will discuss in this lectures about the equation of motion, the derivation of equation of motion by the graphical methods. For this session, you are welcome to Aspiring SS, and now start today about these topics. The first one is this one: derivation of equations of motion by the graphical method. This is the one of the most important method to be analysis about that, because the present trend of the numericals is also based on these graphical methods. Most of the questions we'll see in the papers like this. You have some numerical values is there. It may be कि आपके इस ग्राफ में कुछ numerical value present हो, जिसके accordingly आप इस system के अंदर आके आप उसके numerical solve कर सकते हैं. And whole the equation of motion, how can prove by the graphical method, we can check here and try to be understand कि how it is beneficiary for the students and how it is important to be analysis method by the graph. Okay, now the first I will discuss about that. Okay, we have the graph first one, because I am using this graph to derive all the equation of motion by these equations. Okay, and now the first one is, this is the graph between the t और between the v. ठीक है, आपकी velocity के साथ है और t के साथ है. इनिशियली जब कोई पार्टिकल्स आपका इस तरीके से मूव करता है, जाएगा, ठीक है, जा रहा है, एंड इट मे बी बैक टू दिस इज द टर्निंग पॉइंट फॉर दैट, बिकॉज हेयर इन द सिस्टम ओनली द स्ट्रेट लाइन इज प्रेजेंट. टोटली सिर्फ ये यहाँ से लेके सीधे यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जा रहा है. ठीक है, इट मीन्स अगर आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो आपका पूरा स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी द व्हाट, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया. इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन आपका बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा अगर ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है. इनिशियल टू फाइनल आप देखते हो हमेशा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल के वैल्यूज हमेशा ज़्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल. अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करते हो इस ग्राफ्स के अंदर, ठीक है, तो एवरी पॉइंट्स फॉर दैट आपका इनिशियल वैल्यूज यहाँ पर है, ओ से ए तक आपकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, और ए से लेकर के सी तक यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी दे रखा है. ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. जैसे आपकी इस वैल्यूज की इस क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं इधर की तरफ, और एक चेंज हो रही है इधर की तरफ. ठीक है, जब आप इनिशियल, अब आप इस टाइम के साथ अगर इस ग्राफ को देखते हैं टाइम के साथ ही, तो हमेशा ही आपका जो वेलोसिटी का ग्राफ, एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, वह वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. इसी के हेल्प से आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, और इसकी हेल्प से जो ग्राफ आप प्लॉट करेंगे
उसी ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यूज क्या मिलेगी, अब चूंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, so that it will take a uniform acceleration is there. Then we can consider a graph between the velocity and time plotted like that. जो straight line, their acceleration will be the uniform, मतलब constant acceleration के साथ ये move करता है. अगर इन जनरल रिलेशन के बाद देखा जाए तो आप ऐसे भी कहते थे a is equal to v upon t, so that v is equal to a into t and v is proportional to t when a constant. आप कहते थे a constant, और ये ग्राफ भी इसी से रिलेटेड है. b इज प्रोपोर्शनल टू t, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. जब आपने 1 लिया 1, 2 लिया 2, 3 लिया 3, 4 लिया 4, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो रहे हैं. दिस ग्राफ properly represent a straight line and between the velocity and time, it give the uniform acceleration in the given system by the differentiation of these equations. So that let us consider first a body move या particle move in a straight line. सबसे पहले कंडीशन क्या मान रहे हैं कि कोई पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. तो पहली कंडीशन आपके पास ये है कि कंसिडर करिए आप कि मूविंग पार्टिकल along the straight line, path with initial velocity u and uniform acceleration a. ठीक है, the initial velocity u and uniform acceleration a. यूनिफॉर्म क्यों एज्यूम किया हमने यहाँ पर, क्योंकि आप इस कंडीशन में एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन है वहाँ पर वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, एक कांस्टेंट फॉर्म में आ रहा है, तो a यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा. सो दैट सपोज इट इज ट्रेवल s and distance with time t as shown in the figure. तो आपकी इस ग्राफ में दिखा दिया. and so that let us consider about this कि आपके पास इनिशियल जो वेलोसिटी है वो o से u तक है एंड फाइनल वेलोसिटी a से लेकर c तक है. एंड इन एक्चुअल्स में अगर आप देखते हो तो स्लोप आपके पास गिवन, अगर हम स्लोप की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपके इस ग्राफ की बात करते हो, जब आपके पास a कांस्टेंट है, ठीक है, अगर आपके पास a कांस्टेंट है तो इस कंडीशन में जो आपका बेसिक स्लोप है यहाँ पर, बेसिक स्लोप वो इस तरीके का है. ये तो आपके पास थीटा है और ये आपके पास वेलोसिटी v है और ये आपके पास t है. तो यहाँ पर जो स्लोप आपका रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इट मीन्स डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, एंड दिस इज स्लोप इफ द गिव ऑफ द कांस्टेंट वैल्यूज एक्सेलरेशन. तो किसी गिवन ग्राफ में जब भी आपके पास कोई वैल्यूज गिवन होगी वहां पर इस ग्राफ के अंदर जो कांस्टेंट है उसका स्लोप उसी के वैल्यूज देगी, ये बात आपको याद रखना है. बाय द डेफिनेशन इज आल्सो प्रूव्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट इज एक्सेलरेशन, एंड सो दैट वी कैन से the rate of change of acceleration is uniform, so that it will be the constant in the given equation. Here we have the equation a is equal to v upon t and v is equal to a into t. If a is the constant, then v is proportional to t, give the straight line equation is coming. If we are taking the slope of this graph, we can find out the acceleration of the given particles. It represented that slope is an important information and also related to tan theta. Tan theta is equal to delta v upon delta t is equal to acceleration here. ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा वी आपके पास क्या है, वो इनिशियल टू फाइनल, यही तो आपके पास डेल्टा वी है और ये आपके पास है डेल्टा टी, एंड रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इज नथिंग बट tan theta, and it's give the information about the slope of this constant. Very nice. And be careful, if you have the some other graph like this one and this versus x into t, when a is the constant, it behave like this one and its slope will be the change. If a is equal to x upon t square, so that x is proportional to t square when a is equal to constant, then it's have the some different slope and some different values of that one. If a given graph, the point is instantaneous at particular time, any particular time it will give like same information delta x upon delta t.
You can find out these values with the given equations. It has some slope. Here is the different slope and here is the different slope. In both cases you can find out the acceleration because acceleration is the constant in the given graph. You can find out these values. And very interesting, we can see and we can derive this relation with the help of this graph, because graph give a lot of information. You can plot up these equations versus velocity versus time, and if a is the constant, the slope will be the given the constant values. Acceleration constant is there. Also we can find out the relation between tan theta and acceleration. Then tan theta is acceleration. Sometimes आप देखते होंगे JEE एडवांस में, मेंस में या नीट में, CBSE में, कहीं पर भी कई बार वो सिर्फ इसकी वैल्यूज दिए होते हैं थीटा के साथ, दिस, ठीक है, एंड दिस, ऐसे वैल्यूज दिए हो रखते हैं, और आपसे रेशियो के फॉर्म में पूछते हैं तो ये जो थीटा के वैल्यूज है आपके पास tan थीटा देते हैं, ये 1 tan थीटा 2, ठीक है, एंड tan थीटा 2. We can find out the ratio of these values and also give the ratio of acceleration. Another point is this ratio of acceleration. अगर आप इस पॉइंट्स को देखते हो तो आप ratio of acceleration की बात करते हो. So that we will discuss about all things in details with the derivation of this function and also the importance of the graph in velocity and time graph in the given acceleration. The acceleration at a is equal to constant, it may be like this one, straight line, and it may be like the slope of these equations. Depending upon at a is constant, then what will be the axis of y axis and what will be the t axis. Means ये जो y दे रखा है आपके पास, y axis और ये क्या चीज़ है, इसी बात पर डिपेंड करे. यहाँ भी एक कांस्टेंट है, यहाँ भी एक कांस्टेंट है, बट इन दोनों केसेस में ग्राफ के अंदर जो आप देखते हैं वो a के साथ वैल्यू इस तरीके से है और इसके साथ ये वैल्यू है. This is the very important things. Show that now its velocity time graph, it's a straight line. Here OA and ED is equal to U. AD, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो OA, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, OA is equal to ED, और यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं दिस वन ग्राफ. OA और ED दोनों इक्वल सेम है और दोनों की वैल्यूज क्या है, u. ये क्या है, u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी इन द गिवन ग्राफ. इनिशियल वेलोसिटी इन द गिवन ग्राफ. नाउ वी हैव द सम अदर पैरामीटर्स. OC is equal to EB is equal to V. It means in the given graph this is nothing but OC. O ये points है and C this point. This is the OC. This is the V. Also we have like this one, this value B to E is also the V. This is the axis of this points to D is the final velocity and this initial velocity. This equal to this graph and this equal to this graph. Then O is equal to OB is equal to final velocity V. Now OE is equal to T. OE is equal to T. Now this value is nothing but OE is equal to T. Then we know that the acceleration is nothing but slope of velocity minus का time, slope velocity time graph, जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे slope, ये आपको acceleration दे रही है. इस by this definition we can say that the acceleration of the given slope of velocity time graph AB. A और B के साथ पॉइंट्स आपके पास, यहाँ पर पॉइंट्स का A to B. इस पॉइंट का जो स्लोप होगा आपके पास, ये वाले आपके पास स्लोप होंगे डेल्टा V और ये होगा पास डेल्टा D. ये स्लोप आपके पास. If you are taking this theta, this slope is nothing but tan theta, right? By this method we can say the acceleration of this equation is equal to dB upon AD is equal to dB upon OE. So from graph acceleration A is equal to dB, okay, dB, ये वाले वैल्यूज यहाँ से यहाँ तक dB upon OD upon AD, upon AD, ये फर्स्ट इक्वेशन. एंड देन दिस इज इक्वल टू dB upon OE, AD is equal to OE, ठीक है. This values will equal to this values. From this graph you can say that EB minus ED upon OE is equal to V minus U upon T.
By the simplification of this equation, by the simplification of this equation, then we can find out these values v minus u upon t, so that we can say at is equal to v minus ka u, where v is nothing but the final velocity and u is the initial velocity, and the difference of them is give the relation nothing but acceleration into time. So that by the simplification of the equation we can find out that final velocity v is equal to u plus at, where a is the acceleration and t is this time, where a is the acceleration and v is the final velocity. This is the आपका initial velocity, a आपका acceleration, and this is the t, where a is nothing but the slope of this graph also, as well as you can say that the uniform acceleration of the given system, right? And similarly, this is the first equation of motion by this graph method. This is nothing but the acceleration is defined this values upon this value, ratio of this and this acceleration. Similarly, we can find the equation of motions too. This is nothing but s is equal to ut plus half at k square. We can also derive this relation by this method. We can say that from the using this previous graph, from part 1 we have a is equal to dB upon AD. By this graph, in previous graph we have to write this equation, and dB is nothing but this one, and AD is equal to what? T. This is nothing but similar like graph, this one. Okay, this is the u and this is the v, and this is nothing but ये t. ये है ना ग्राफ टोटल आपके पास, टोटल गिवन ग्राफ आपके पास ये है. दिस इज द टी. सी अगर यहाँ आपके पास थीटा है, देन स्लोप आपके पास यहाँ पर डेल्टा वी होगा और यहाँ पर डेल्टा टी आएगा. ठीक है, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लिख सकते हो dB इक्वल टू a इंटू टी. dB इक्वल टू a इंटू टी, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t is s is equal to area of trapezium OABE. ठीक है, इन प्रीवियस स्लाइड्स वी कैन सी दैट. ठीक है, OABE, OA, ठीक है, OAB और E, OAB और E. ठीक है, तो स्लोप में आपका जो यहाँ पर है OA, दिस इज नथिंग बट ट्रोपेजियम बाय दिस मेथड्स. ये एक्चुअल वैल्यूज इनकी, इसके साथ बात कर रहे हैं. ठीक है, OAB और E, इस ग्राफ की वो बात कर रहे हैं. इस ग्राफ के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो कंडीशन आएगी. एक आपके पास यहाँ तक ये ट्रायंगल है और एक आपके पास क्या है, ट्रेपेजोइडल स्क्वायर. देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर OADE, ठीक है, OADE पहला एरिया यहाँ पर आपके पास है, प्लस एरिया ऑफ ADB, AD एंड B. तो दो एरिया आपके पास आ गए. एरिया पहला आपके पास एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर दिस वन फर्स्ट, एंड दूसरा एरिया आपके पास. ये दोनों को इन्होंने प्लस करा और उन्होंने बोला कि इस एरिया को आप ले सकते हो यहाँ पर, so that we can find out these values OA into OE, OA into OE, this axis into this axis, this multiply by this, plus half of this. इसका एरिया आप निकालोगे कितना आएगा, 1/2 BD into AD. ठीक है, हाफ ऑफ दिस, इस एरिया क्या है, पूरे का हाफ ही तो है, दिस इंटू दिस का हाफ, तो BD इक्वल टू AD. देन वेयर S इक्वल टू OA इंटू E इज नथिंग बट ये आपका U है, यहाँ से यहाँ तक U है और ये आपका T है. देन मल्टीप्लाई बाय U इंटू टी प्लस 1/2 BD के आपके पास एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय दिस. ये इक्वेशन आपके पास है, इस इक्वेशन को यूज करा हमने. देन वी कैन फाइंड आउट द 1/2 AT इंटू टी, एंड AD इज नथिंग बट T. AD आपके पास क्या है, ये AD, ये जो वैल्यूज आपके पास है वो T ही तो आपके पास. Then we can find out these results. S is equal to ut plus half AT का square. Similarly, we can find out the, this is nothing but, this is the equation of motion 2, and then after we can find the equation number 3.
v square is equal to u square plus 2as, where s is the distance, a is the acceleration, v the final velocity, and u the initial velocity. Okay, and similarly by the using of this graph we can find out this also. The distance traveled by the object in time t is s is equal to area of trapezium OA, ठीक है, OABE, OAB की बात हो रही है, OABE, and 1/2 of this AD EB plus OA into OE, इसी ग्राफ में है, इसी ग्राफ से, and half of this area ED plus this is equal to OE. This is S, इक्वेशन नंबर. आप इस इक्वेशन को कोई इक्वेशन मान सकते हो, इक्वेशन A कर लो या B समथिंग. Then we can find out the slope of this velocity time graph of AB is equal to, ठीक है, A is equal to dB upon AD is equal to ED minus. अब इस दोनों के वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पर. तो OA is equal to EB minus ED upon A. Now we have this from relation A वाले पॉइंट से इसकी बात कर रहे हैं. तो OA की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करना चाहते हैं. OA की वैल्यू जब पुट करोगे तो S is equal to 1/2 ED प्लस, ठीक है, EB प्लस ED into this relation is the position of at OE की जगह पर हम पुट कर रहे हैं ED माइनस, ठीक है, ED माइनस EB माइनस ED, EB माइनस ED अपॉन A. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक रिलेशन आ गया यहाँ पर, x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इस बेसिस पर, इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसी रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है, s इक्वल टू 1/2 a, हाफ दे रखा है, 2 है यहाँ पर, तो 1/2 a e b का स्क्वायर माइनस e d का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू e जो आपके पास गिवन ग्राफ है वहाँ पर e b इक्वल टू क्या v है और e d क्या u है, दो बोथ आर द स्क्वायरिंग टर्म इज देयर, so that we can find out that result is nothing but s equal to 1/2 a v square minus का u square, so that 2a s is equal to v square minus का u square and v square is equal to, ठीक है, u square and plus का 2s, और v is equal to root of this relations is u square plus 2s. ये आपका इक्वेशन नंबर 3. एक्चुअल रिलेशन जो फेमस इक्वेशन है वो ये वाला इक्वेशन 3, and on the basis of that we can find and derive these relations with the help of these equations. So very best. तो जो बेसिक फंडामेंटल्स ग्राफ के आपके पास हैं, स्लोप से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चल गई. अब बाय ग्राफ मेथड्स हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं ये भी आपको पता चल गया. इन द एप्लीकेशन सेक्शन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जैसे आप पोजीशन से वेलोसिटी एक्सेलेरेशन और इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अलग से समझाए थे कि ग्राफ के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चंस आते हैं, एंड सिंपल जो आपका कैलकुलेश है वो एक्स से आप वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन निकालते हो और उससे आप रिवर्ट ऑर्डर में कैसे जाते हैं. इस तरीके के क्वेश्चंस को निकालने के लिए भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं. तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स भी छोटे मोटे, जिससे आपको एक जो डिफरेंस है मैंने आपको कहा था कि आप दो चीज़ों का ध्यान करना कि आपका t इज अ फंक्शन ऑफ x है या x अ फंक्शन ऑफ t है. इसी के बेसिस पर आपको सारा रिजल्ट देखना है. दोनों ही केसेस में बहुत फेमस है कि जब आपका कोई टाइम का फंक्शन पोजीशन का हो, टाइम इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो आपकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन का मेथड चेंज हो जाता है कि कैसे फाइंड आउट करना है, और वही चीज़ एग्जाम में सबसे बार बार पूछी जाती है. जो नॉर्मल डेफिनेशन है a इक्वल टू dv अपन dt, वो थोड़े कम पूछे जाते हैं, वो CBSE में पूछे जाते हैं, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चंस आपके पास हैं, अच्छे लेवल के हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. आइए देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे पहचानते हैं हम कि कौन सी इक्वेशन किससे फेमस है. द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वैरीज विथ टाइम t एज x इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 50 15t प्लस 25. ये रिलेशन आपको दे रखा है. पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट द पोजीशंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0. तो जब आप इसके सोल्यूशन की आप बात करते हैं, देन फर्स्ट वन इज वी कैन से दैट पोजीशन x इज द फंक्शन ऑफ t इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस का 15t एंड प्लस का 25.
ठीक है। दिस इज नथिंग बट द पोजिशन इज द फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि टी के साथ वेरी कर रहा है। क्लियर। देन एक्स की वैल्यूज कब चाहिए आपको, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, सो दैट आप 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 एंड प्लस का 25 एंड दिस इज इक्वल टू 25 मीटर। अगर आप इसकी पोजीशन की आप बात करते हैं तो पोजीशन में आपके पास ये वैल्यूज मिलेंगी एक्स के साथ। जब आपने टी इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो इस केसेस में इसकी वैल्यूज कितनी आ रही, 25 मीटर्स। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, वेरी नाइस। एंड देन आफ्टर वी हैव नीड टू वेलोसिटी, देन v इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका, डी एक्स अपॉन डी टी। दिस इज नथिंग बट वी कैन फाइंड आउट दिस रिजल्ट आफ्टर द डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशंस। तो डिफरेंशिएशन के लिए आप कैसे करते हो, जब भी आप d अपॉन डी एक्स ऑफ द फंक्शन ऑफ x के पावर n करते हो तो n x के पावर n माइनस 1 इन जनरल नथिंग बट आपका पावर जो होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, उसके पावर माइनस 1 कर दोगे। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स ऑफ एनी c इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और कोई फंक्शन है x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो n x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर t दे रखा है तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको पहले, तो 4 कांस्टेंट है ये बगल में रहेगा, फंक्शन t का है तो ये आ जाएगा 2t और 2 माइनस 1 तो 2t माइनस का 15, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा t के पावर 1 इंटू टी के पावर 1 माइनस 1 तो t के पावर 0 की वैल्यू 1 एंड प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये आपका 0 हो जाएगा। देन आपने यहाँ पे कहा कि 8t एंड माइनस 15, देन वेलोसिटी एट व्हाट, द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड, यूनिट के साथ लिख रहा है मैंने। तो ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी। नाउ वी हैव द सम बेसिक फंडामेंटल फॉर दैट कि हमारे पास इसका एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सेलरेशन के लिए a इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर डी बी अपॉन डी एक्स। तो आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो यहाँ पर सिर्फ 8 आ जाएगा, तो 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है ना, और जो यही वैल्यूज है एक्सेलरेशन की वो दो तरीके से आपके पास a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये भी तो होगा आपके पास। तो बाय दिस मेथड भी यही वैल्यूज आएगी और इसको आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तब भी यही आएगी। तो दोनों का ही रिजल्ट आपका क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसमें t का फंक्शन नहीं है तो आप t रख नहीं सकते, तो ये पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, मीटर पर सेकेंड 8 वो आपके पास फंक्शन है। एंड सिमिलरली वी हैव अनदर क्वेश्चन इज देयर। इस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करोगे, यहाँ पर इन्होंने कहा कि इनको क्या चाहिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यूज पूछना है कि किस पोजीशन पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। और फंक्शन दे रखा है, सोल्यूशन आप देखिए यहाँ पर t इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 3, इसका मतलब क्या हुआ, t इज द फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू रूट में x प्लस 3। अब आप इसको क्या करेंगे, dt अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन बी एंड नथिंग बट x के पावर 1 अपॉन 2 है तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर, तो ये 1 अपॉन 2 रूट में x ये आ जाएगा, और ये वैल्यूज क्या हो जाएगी इसकी, 0 आ जाएगी। यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, प्लस 0। देन v इक्वल टू 2 रूट में x, यही ना, ये आ जाएगा। एंड x की वैल्यूज क्या होगी, जब आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो आप, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड जब v इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी 0 कब होगी, जब आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। बाय अनदर मेथड्स वी कैन से, बाय द अदर मेथड्स, बाय द अदर मेथड वी कैन से ठीक है, बाय अदर मेथड वी कैन से दैट
कि आप इसी को चेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते थे, t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन x इज इक्वल टू t माइनस 3 का स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते थे, वेयर x इज द फंक्शन ऑफ t, दिस इज इक्वल टू t माइनस 3 के पावर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू v and this is equal to 2 and t minus 3 and differentiation of this function is 1 so that 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v is equal to 2 and t minus का 3। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, आप वेलोसिटी 0 करोगे तो आपका t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, v इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये 0, t इक्वल टू 3 आ जाएगी। अगर आप पास t इक्वल टू 3 है तो आप इसी इक्वेशन को आप इसमें पुट करोगे यहाँ पर, क्योंकि आपको पोजीशन चाहिए वेलोसिटी पर, तो आप रूट ऑफ x इक्वल टू t माइनस का 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। आप दूसरे अनदर मेथड से आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, आप या तो फंक्शन को चेंज कर दीजिए t के फॉर्म में, या t का फंक्शन गिवन हो तो कुछ x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये बहुत ही एक बेसिक फंडामेंटल्स है, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि आप कैसे इसको एक से ज़्यादा मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। सिमिलरली इफ यू हैव सम अनदर रिलेशंस, वन मोर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू गो द रिवर्स ऑर्डर ऑफ दिस वन, आप एक्सेलरेशन से पोजीशन की तरफ कैसे जा सकते हो, उसको देखने के लिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारे पास, the acceleration of the particles, the acceleration of the particles in meter per second square is given by a is equal to 3t का स्क्वायर plus 2t plus 2, where t is in second, where time t is in second. If the particle started if the particle starts with a velocity v is equal to 2 meter per second at t is equal to 0, then find the velocity, then find the velocity at end of 2 सेकेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये चीज़, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये चीज़। इससे आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो बहुत बढ़िया रख सकते हैं। ठीक है, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0, ये रिलेशन आपके पास की। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, हाउ कैन फाइंड आउट दिस रिलेशंस। ऑलरेडी हम लोग इस बात को जानते हैं अच्छे तरीके से कि जब हम x की तरफ से जा रहे थे तो हमने इसको कहा था dx अपॉन dt, या वेलोसिटी हो गई थी d2x अपॉन dt का स्क्वायर, इसको क्या हो गया था dv अपॉन dt, एंड दिस इज इक्वल टू a। ये एक फंडामेंटल रिलेशंस है जिसकी हेल्प से आप जाते हो बाय द डिफरेंशिएशन मेथड, बाय द डिफरेंशिएशन मेथड। बट वी कैन फाइंड आउट द रिवर्स ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन by the integrating of this relation, by the integration of relation। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर a की वैल्यूज है, a इक्वल टू 3t का स्क्वायर एन प्लस 2t
एन प्लस 2। ये रिलेशन आपके पास, ये आपके पास रिलेशन है। इफ आर टेकिंग द इंटीग्रेशन बोथ साइड वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी v इक्वल टू, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो r dv अपॉन dt, r करके आप कह सकते हो r, दिस इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर प्लस 2t n प्लस 2, एंड देन dv इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर प्लस 2t n प्लस 2 इंटू dt, ये आप यहाँ कह सकते हो। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, आप बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो आपको मिल जाएगा v इक्वल टू 3t का क्यूब बाई 3। अब यहाँ पर एक फंडामेंटल बात भी है, यहाँ भी एक फंडामेंटल रिलेशन है जो आपको बता देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा, एक पावर आपका बढ़ जाता है इंटीग्रेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, t के पावर स्क्वायर है, जब आपने इसको इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया तो t के पावर 3 अपान t हो गया, n प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, ठीक है, n प्लस 2 इंटू टी प्लस C1, एक C1 की वैल्यू आ गई। अब गिवन क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है व्हेन t इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन में अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यूज भी 0 जा रही है और ये वैल्यूज भी 0 जा रही है, आपके पास सिर्फ बच रहा है ये रिजल्ट्स। देन 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू C1, ये रिजल्ट है आपके पास। देन वेलोसिटी इज नथिंग बट v इक्वल टू, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गई, t क्यूब प्लस 2 से 2 कैंसिल, t स्क्वायर n प्लस 2t n प्लस 2, ये रिलेशन आपके पास गया। आपको चाहिए क्या, पोजीशंस, तो आप क्या कर सकते हो, dx अपॉन dt इक्वल टू t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2t n प्लस 2। और ये पूछ रहे हैं कि इस कंडीशन में एंड ऑफ द 2 सेकेंड के वैल्यूज के लिए फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी एट एंड ऑफ 2 सेकेंड, जब आपको पोजीशन नहीं चाहिए, अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज t की वैल्यू 2 सेकेंड पर इन्होंने पूछा हुआ है, तो आप इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशंस में। यहाँ पर इसके रिजल्ट से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना इसकी वैल्यूज़ हैं। इन सच केस वी कैन फाइंड आउट दिस, t का क्यूब 2 का क्यूब n प्लस 2 का स्क्वायर n प्लस 2 इंटू 2 n प्लस 3। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, देन 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, तो 12 और 3 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रहें, आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक इंडिकेशंस कर दिया है कि इंटीग्रेशन मेथड से आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सिंपल है इंटीग्रेशंस करना, आप 2 बार कर दीजिए, 3 बार करते जाइए। आपके पास जब तक किसी क्वेश्चंस में लिमिट गिवन नहीं हो, आप C1, C2, C3 लिखते जाना और उसको इंटीग्रेट करते हुए जाना, और गिवन क्वेश्चन कंडीशन के अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन की वैल्यू निकाल लेना। अगर आपके क्वेश्चन में ही लिमिट गिवन है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की, तब आपको C1, C2 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, तब आपको कांस्टेंट वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब वेरी सिंपली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को याद रखना, बहुत बेसिक तरीके से यूज़ करना। ग्राफ को कैसे यूज़ करते हैं वो यूज़ कर देना आप, स्लोप कैसे निकालते हैं वो यूज़ कर लेना आप, क्योंकि स्लोप का इंपॉर्टेंस बहुत है, tan थीटा की वैल्यू उसका इंपॉर्टेंस बहुत है। और गिवन क्वेश्चंस में कभी कभी ग्राफ में ही दिया रहता है θ1, θ2, θ3, तो उसकी स्लोप के वैल्यू से आप देख लेना कि ग्राफ किसके बीच में, x v और t के साथ है या x और t के साथ है। उसके अकॉर्डिंगली आपका स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेशियो आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक हेल्प में बताता हूँ कि ये आपके पास एक ग्राफ है, यहाँ पर यह x वर्सेस t का है, किसी पोजीशन से आप इसको देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है। आपने इनिशियली इस चीज़ को इस तरीके से कर दिया कि ये कोई ग्राफ गिवन है, यहाँ पर कोई थीटा है, ठीक है, इसकी वैल्यू स्लोप्स में। और सेम ग्राफ की बात अगर हम करते हैं दूसरे इक्वेशंस में, अगर आपने ये t के साथ दे रखा और ये v दे रखा है और वो भी कोई स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन के केसेस में जो आपका जोन है ये वाले ये आप इनिशियल के लिए और ये आपके पास क्या फाइनल के लिए है, और इसके अकॉर्डिंगली आपका ये t के साथ ग्राफ ये t है।
और जब इसी तरीके से जब आप यहाँ पे निकालते हो डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, तो ये आपको एक्सेलरेशन देते हैं, और यहाँ पर आप एक्स वी के साथ रखा हुआ है आपने, तो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी आपको क्या देंगे, वेलोसिटी देंगे। देन अगर इस ग्राफ के अंदर आपके पास इस तरीके का रिलेशन गिवन है 1 2, ठीक है, और यहाँ पे दिया जा रहा है कि यहाँ पर ये है θ1 और यहाँ पर है θ2, ठीक है, और ये x वर्सेस t का है, तो जो आपके पास वेलोसिटी रेशियो है v1 अपान v2 वो क्या होगा, tan θ1 अपान tan θ2। एंड सेम फॉर द सेम, अगर आपके पास सेम ग्राफ गिवन है यहाँ पर और ये v वर्सेस t में दे रखा है और 1 एंड 2, यहाँ पे आपके पास θ1 और यहीं से अगर आपका θ2 है, देन यहाँ पर जो स्लोप आएगा आपके पास वो क्या आएगा, a1 अपान a2 का एक्सेलरेशन इक्वल टू tan θ1 अपान tan θ2। इस रिलेशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि θ1 अपान θ2, ठीक है, a1 अपान a2। तो जो गिवन स्लोप है आपके पास वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके रिजल्ट्स के लिए, आपको इसी पता चल सकता है कि आपके गिवन ग्राफ में कितनी वैल्यूज गिवन है। अदरवाइज आपको बहुत सारे ऐसे ग्राफ मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ मिल जाते हैं, जिससे आप इसकी कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, जिससे आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। इन जनरल कुछ ऐसे भी ग्राफ आपको मिल जाएंगे जिसमें 1 2 3 ये टी की वैल्यू है 1, ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, सेकंड के साथ, और ये वैल्यूज आपके पास गिवन है यहाँ पर, ठीक है, और ये दे रखा आपके पास वेलोसिटी का v मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से। और ग्राफ किस तरीके से प्लॉट गिवन है, यहाँ पर कोई ग्राफ की वैल्यूज दे रखी है आपने इस तरीके से, ठीक है, आपसे कहते हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वैल्यूज, फाइंड द एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड का पूछते हैं, तो a इक्वल टू आप क्या निकालोगे, आप डेल्टा v अपान डेल्टा टी, इस इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपान t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये तो इस केसेस में आपके पास वैल्यूज यहाँ से चलेंगी, ठीक है, एंड ऑफ 4 सेकेंड की आप बात करते हो, 4 सेकेंड की वैल्यूज यहाँ पर है, इस 4 पॉइंट के हिसाब से आपकी इसकी वैल्यूज की स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 4 है तो ये भी 4 जाएंगे, ठीक है, तो दोनों 4 4 आएंगे। तो इस केस में आपका ये 4 माइनस 0 अपान सेकेंड की बात करते हो आप, तो यहाँ से भी 0 माइनस 4 माइनस 0 एंड सच केस ये 1 आ जाएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये रिजल्ट है आपके पास। तो बाय ग्राफ भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखिए, स्लोप से भी निकालना सीखिए, tan थीटा भी निकालना सीखिए, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दे सकती हैं इस थीटा के साथ जाते हो। अगर आप इसका स्लोप निकालते हो तो स्लोप इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा की वैल्यूज क्या आएगी 1, ठीक है, और tan थीटा 1 की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू वाट 1 अपान रूट में, सॉरी, ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 एंगल, यही ना, तो एंगल कितना है यहाँ पर 45, तो आप एंगल निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन फॉर द टुडे, thank you so much for everyone and welcome to Aspiring SS. Please welcome to see in the class notes and everything with the short tricks, and also we are going discussing about the logical questions also given. तो आप चीज़ों को समझने के लिए, क्लासेस करने के लिए Aspiring SS जो आपका प्रशांत बिहार में वहाँ आ सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेक्चर्स अवेलेबल हैं, एंड डिटेल्स डिस्कशन DBP के साथ, क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ, टेस्ट पेपर के साथ आप यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो अपने फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, CBSE का, नीट का, JEE का, NITC जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।